Hello students, welcome to Unique Academy. Today we are going to continue the chapter Science of Science 1, lesson number 3, that is chemical reactions and equations. In the previous lecture we have already did with types of chemical reactions, in which we have seen there are 4 types of chemical reactions. First one is a combination reaction, second one is the decomposition reaction, third one is displacement reaction, and fourth one is the double displacement reaction, in which we have already covered two reactions. The first one we have covered is the combination reaction, and the second one we have covered decomposition reaction. So let us first revise what is combination reaction and decomposition reaction, and later on we will move to the remaining two main reactions, so that is displacement reaction and double displacement reaction. So students, before that I'd like to request you to please subscribe my channel Unique Academy and hit the icon bell button so that you get notifications in time. Okay, so we are going to first take a short review of combination reaction and decomposition reaction. So students, the first one was the combination reaction, in which we have seen the very simple example of magnesium ribbon. When the magnesium ribbon burnt in air, so it takes oxygen from the air and it forms magnesium oxide, Here if I balance it, then this is the balance chemical equation of combination reaction. So students, don't forget to explain this reaction before the chemical equation. इसके पहले आपको लिखना है कि when magnesium ribbon is burnt in air, then it takes oxygen from the air and forms magnesium oxide, which is white in color, while it burns it gives out white light. Okay, so magnesium ribbon जब burn होता है तो वो white light देता है और it forms magnesium oxide. So this was about the combination reaction. And if I take one more example of combination reaction, that is NH3 plus HCl, that means ammonia, and in ammonia suppose HCl is added, what we get ammonium chloride, that is NH4Cl. तो इसमें आप देख रहे हैं combination reaction में दो चीज़ें, यहाँ पर दो कंपाउंड कंबाइन होके हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है. दिस इज अ सिंगल प्रोडक्ट. ओके, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे कि व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर to give a single product, then such type of equation is called as combination reaction. If we move on to students decomposition reaction, decomposition reaction में हमने क्या देखा, decomposition reaction में ये देखा कि एक सिंगल कंपाउंड जो है it gets converted into two or more compounds. तो यहाँ पर देख रहे हैं दो चीज़ें कंबाइन होकर एक हो रही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. डिकम्पोजिशन में एक चीज़ जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस. तो इस तरह से हमने एग्जांपल देखा था कि C12H22O11 जो कि शुगर है. व्हेन शुगर इज बर्न्ट इन इवेपोरेटिंग डिश, तो व्हाट विल हैपन, वी रिमेन विद द कार्बन एंड वाटर मॉलिक्यूल इज गिवन आउट. तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो इट विल बी 12 and this is 11. So this was the equation we have taken. और इसका definition हम लोग देख रहे थे कि the reaction in which the only one reactant giving rise to two or more products, then such a type of reaction is called as decomposition reaction. I repeat, the reaction in which a single reactant gives rise to two or more products, then such type of reaction is called as decomposition reaction. और अगर हम example देखेंगे कि hydrogen peroxide, the formula of hydrogen peroxide is H2O2. तो this hydrogen peroxide in nature मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर आप इसको बॉटल में रखेंगे तो it slowly decomposes into water and oxygen. It slowly decomposes into water and oxygen
So the question can be asked students कि what will happen if the hydrogen peroxide decomposes. तो आपको लिखना है when hydrogen peroxide decomposes naturally it undergoes low decomposition and forms water and oxygen. तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे then we have to write here 2 and this is 2. तो we see that, तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको बताया कि what happens when hydrogen peroxide decomposes naturally. तो आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड will decompose naturally, it slowly decomposes and gives water and oxygen. ओके, फिर और एक अगर हम रिएक्शन देखेंगे कि एक बीकर है, तो बीकर में हम लोग 2 इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे और फिर बाद में वी आर कनेक्टिंग इट टू अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू दैट इलेक्ट्रोड. तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव है एंड इन दिस वी आर गोइंग टू टेक द acidulated water. What we are going to take? Acidulated water. तो acidulated water में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्या होएगा, उसका डिसोसिएशन होएगा और फिर it gives hydrogen and oxygen. तो that means when electric current is passed through acidulated water, hydrogen gas and oxygen gas is liberated. तो वाटर है आपका, ये कौन सा वाटर है, acidulated water है and it gives hydrogen and oxygen. Okay, तो this is a gas, तो it liberates at anode and cathode. So यहाँ पर अगर इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, then this equation is balanced. So this is the decomposition reaction. We have already seen with the definition, and in the surrounding in nature we also see many types of decomposition reaction takes place. We can say that सब्जी की जो छिलका होता है और फिर लीव्स जो होते हैं वो जब हम जमा करते हैं तो आप देखते हैं कि एक पिट बना के हम उसमें डाल देते हैं एंड वी कवर दैट पिट. So after some days what will happen, microorganism grows in that and that microorganism will decompose that leaves and whatever the remaining of the vegetables and it will form a rich manure. क्या बनाएगा वो, एक manure बनाएगा and it also form of fuel, biogas, that is biogas. तो biogas is also used as a fuel. तो ये थोड़ा सा छोटा सा रिविजन था जो मैंने कुछ नई बातें मैंने अभी रिविजन में बताई. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू थर्ड टाइप, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Displacement reaction. Now the word itself says that displace. Displace मतलब क्या, किसी को वहाँ से उठाना और उसके जगह पे खुद बैठ जाना. ओके, तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेस. सपोज आपका फ्रेंड चेयर पे बैठा हुआ है तो आप जब जाते हो तो आप उसको उठाते हो या फिर वो खुद उठ जाता है और आप उसके जगह पे बैठ जाते हो. दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेस. ओके, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे हो रहा है. द वेरी फेमस रिएक्शन हमने केमिकल इक्वेशन लिखते समय जो लिया था, दैट वी आर गोइंग टू टेक, दैट इज एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में हम क्या डालेंगे, जिंक डस्ट डालेंगे. तो व्हाट विल हैपन, वी गॉट जिंक सल्फेट, वी गॉट जिंक सल्फेट एंड कॉपर, वी गॉट जिंक सल्फेट एंड कॉपर. तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर कॉपर जो है वो हट जाएगा और जिंक और सल्फेट क्या बनाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे. क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे. तो इस तरह से जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर जो है वो आपका साइड में रह जाएगा. तो इसमें एक स्टूडेंट्स आपको ध्यान में एक बात याद रखनी है. तो ये कॉपर जो है ये मैंने आपको बताया था ये प्लस होता है और ये माइनस होता है. ओके, और ये जिंक जो है ये एटम है. ओके, तो जिंक एक एटम है और यहाँ पर CuSO4. तो CuSO4 कैसे बना स्टूडेंट, CuSO4 कैसे बना, तो इसमें हमने यहाँ से Cu लिया और यहाँ से SO4 लिया. SO4 2- ऐसे होता है और यहाँ पर Cu2+ है. तो इस तरह से Cu आयंस इसमें जमा हो गए, SO4 2- आयन जमा हो गया. तो उसका क्या बन गया, CuSO4. तो ये 2 कैंसिल हो जाता है. तो 2 1 कॉमन फैक्टर 2 है, 2 1 तो यहाँ पर नीचे 1 और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो अभी CuSO4 कैसे मिला, इट इज़ फॉर्म बाय द कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस. कॉपर सल्फेट कैसे बना, फॉर्म बाय द कॉपर आयन सल्फेट आयन. तो इतना भी अगर आप याद नहीं रखोगे तो Cu+ एंड SO4- मतलब ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और ये आपका एटम है. तो नाउ व्हाट विल हैपन,
जैसे ही आपका रिएक्शन शुरू हो जाएगा, क्या होने वाला, अभी रिएक्शन शुरू होने वाला, रिएक्शन शुरू होते जिंक जो आपका है एटम है, तो जिंक क्या करेगा, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब एक पानी है, पानी ऑफ वाटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वी कैन से कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जिंक भी मैंने डाल दिया, क्या दिया, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ जिंक, तो ये आपका जिंक है, क्या है, जिंक है, ये जिंक है। तो आप देख रहे जिंक, तो जिंक जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। फॉर एग्जांपल आप बच्चे हैं, तो समझो आपके घर में एक सोफ़ा है और आप 3 बच्चे हैं, आप तीनों भी सोफे में बैठे हो आराम से। तो जैसे ही पापा बाहर से आते हैं तो आप क्या करते हो, पापा को बैठने के लिए खुद उठ जाते हो और आपके पापा वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो आपके पापा आपको बोलते हैं क्या, उठो बेटा मुझे बैठना है, नहीं। तो दैट इज़ द रिस्पेक्ट वी गिव, क्योंकि पापा हमारे बड़े हैं। तो उसी तरह से सम केमिकल सम एलिमेंट जो होते हैं वो पहले से ही डिसाइड करके हमने रखा है कि विच वन इज़ द मोर रिएक्टिव एंड विच वन इज़ द लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर जिंक और जब कॉपर की बात हो रही है तो जिंक जो है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। तो जैसे ही कॉपर सल्फेट में जिंक जब एंट्री करेगा तो कॉपर हट जाएगा और उस जिंक को जगह दे देगा, मीन्स जिंक एटम जो है वो अब जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर कॉपर आयन जो है वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। आई रिपीट स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि जिंक एटम जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर आयन जो है वो कॉपर एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर भी ZnSO4 है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, पर ये तो एटम था, एटम को कोई एटम हैज नो चार्ज, बट यहाँ पर जो है जिंक जो है एटम जो है क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इट कन्वर्ट्स इनटू आयन और ये कॉपर की जगह ले लेगा और कॉपर वहाँ से हट जाएगा, लेकिन कॉपर आयन जो है वो हट जाएगा तो कॉपर एटम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक लूज करेगा और एक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज एंड गेन करेंगे। तो जिंक पहले एटम था, अब जिंक आयन बन गया और कॉपर जो आयन था अब क्या हो गया, कॉपर एटम बन गया। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट ये हो रहा है। तो इसमें इसका सिंपल साधारण मैं अगर एक लाइन में बताऊं तो मैं इसका मतलब ऐसा हो गया कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब जिंक जो है कॉपर को निकाल देगा और उसकी जगह पे बैठ जाएगा। तो अभी यहाँ पर कॉपर को निकाल दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, जिंक आ गया, तो ZnSO4, तो कॉपर तो अलग हो गया, सेपरेट हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स। सो नाउ अगर उसके डेफिनेशन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो दिस इज अ रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव आयन ऑफ एलिमेंट। तो ये लेस रिएक्टिव है, ये कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है, बराबर, लेस रिएक्टिव। तो दिस इज द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ, इधर जगह था कॉपर आयन का, अभी जिंक आ गया, द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव आयन of the element in a compound, ये compound है, okay, in a compound is taken by the ion of the more reactive element। तो another element आ गया उसके अंदर, the is taken by another element of more reactive, another element which is more reactive by formation of ions, so this is the what is the definition of displacement reaction। I repeat कि the reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another element, है ना, or which is of higher reactive and by the formation of ions, तो this is called the displacement reaction। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बुक में दिया गया है, कुछ रिएक्शन दिए ऑलरेडी। कॉपर सल्फेट विच इज इन एक्वायस फॉर्म गिव्स आयन, तो विच इज इन सॉलिड फॉर्म। तो आपको यहाँ पर क्या करने हैं, 2 बॉक्स दिए गए, दैट वी हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। ओके, सो अनदर इज गिवन एज CuSO4 AQ एंड इंस्टेड ऑफ आयन यहाँ पर Pb दिया हुआ है, दैट इज लेड। ओके, तो इसका भी 2 बॉक्सेस दिए गए, तो बताएंगे आप क्या आएगा इसके हिसाब से। देखो Zn यहाँ पर चलाएगा तो ZnSO4 और Cu आपका सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी FeSO4
SO4 और ये CO आपका सेपरेट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी वैसे होगा, PbSO4 लेड सल्फेट प्लस आपका कॉपर जो है वो अलग अलग हो जाएगा। ओके, समझ में आया? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच प्लेस ऑफ द ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element by formation of ions के formation से वह जगह जो है ले लेता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एटम है, लेकिन ये एटम जब आयन बन जाएगा तब ये कॉपर का जगह ले पाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आयन बन गया और ये कॉपर आयन जो है क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वह कॉपर हो गया। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट last type of chemical reaction, that is double displacement reaction, तो fourth one is the double displacement reaction, तो उसमें यहाँ पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं कि एक इक्वेशन दिया है यहाँ पर कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला है K2CrO4, व्हेन यू ऐड पोटेशियम क्रोमेट टू बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला है BaSO4। तो यहाँ पर उन्होंने एक रिएक्शन लिया है कि ऐड पोटेशियम क्रोमेट टू बैरियम सल्फेट, तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा इजी वे बताया था, K प्लस होता है और ये पूरा जो होता है माइनस होता है और Ba प्लस होता है, SO4 माइनस होता है। अभी प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, क्योंकि वह आयन से फॉर्म होते हैं। वो कैसे फॉर्म होते हैं मैंने आपको लास्ट इसमें बताया था। CuSO4 किससे बना था, Cu प्लस 2 प्लस से बना था और SO4 2 माइनस से बना था। तो कॉपर सल्फेट कैसे बना था, Cu2 प्लस आयन कैटायन से और SO4 2 माइनस एनियन से। ओके, तो इस तरह से ये प्लस माइनस होता है। तो अभी क्या होगा कि देयर विल बी अ चेंज इन द पोजीशन। तो मैंने आपको बताया था एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव के साथ ज्वाइंट, मतलब K2SO4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K2SO4। तो अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो इट विल बी लाइक दिस, K2SO4। तो क्या फॉर्म होने वाला है, K2SO4। ओके, अभी बचा क्या, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, मतलब BaCrO4 प्लस BaCrO4। ओके, तो इस तरह से आप देख रहे, इसके पास प्लस माइनस दोनों प्लस माइनस था, इसके पास भी प्लस माइनस था। तो आपस में क्या किया, नेगेटिव आयन जो है वो चेंज हो गए। K2 प्लस के साथ में दूसरा नेगेटिव वाला आयन आया SO4 माइनस, और Ba प्लस के साथ में SO4 माइनस के बजाय CrO4 माइनस आ गया। तो ग्रुप ऑफ आयंस जो क्या हो गए, वो चेंज हो गए। क्या हो गए, वो आपस में एक्सचेंज किए। तो दे एक्सचेंज द नंबर ऑफ आयंस, व्हाट, दे एक्सचेंज द नंबर ऑफ आयंस। तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है कि Ba इज डिस्प्लेसिंग पोटेशियम एंड पोटेशियम डिस्प्लेसिंग बैरियम, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए टेक्स्ट बुक में कि व्हाट आर द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म। तो ये दोनों जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो देयर इज ऑलवेज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, तो प्रिसिपिटेट यहाँ पर कौन सा प्रिसिपिटेट है, तो यहाँ पर प्रिसिपिटेट बताया गया है BaCrO4। तो ये आपका प्रिसिपिटेट है, तो मैं लिख देता हूँ प्रिसिपिटेट, तो आपका प्रिसिपिटेट हो गया। तो ये प्रिसिपिटेट जो है इसका कलर भी पूछा है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ दिस प्रिसिपिटेट का कलर क्या है, येलो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म, तो इट इज येलो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ द प्रिसिपिटेट, दैट इज बैरियम क्रोमेट। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रिसिपिटेट, बैरियम क्रोमेट। थर्ड क्वेश्चन इज दैट राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो मेरे को तो नहीं लगता इसको बैलेंस करने की जरूरत है। देखो K2 SO4 Ba और CrO4, मतलब सिर्फ एग्जैक्टली सिर्फ क्या हो गया, प्लस
के साथ वाला जो नेगेटिव वाला जो ग्रुप है वो चेंज हो गया है। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट फोर्थ क्वेश्चन इज, विल यू कॉल दिस रिएक्शन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? यस, इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वाई? बिकॉज दो पॉजिटिव आयंस यहाँ पर मौजूद है और उनके जो जोड़ी में जो पहले नेगेटिव आयंस थे वो क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो हेंस वी कैन से द डेफिनेशन ऑफ double displacement reaction is the reaction image the ions in the reactant, these are the ions। आप देख रहे हैं इतने कितने सारे ions है, प्लस माइनस। तो the reaction in which the ions in the reactants are exchanged, देख रहे हैं ना, तो ये प्लस जो है ये माइनस को ले लिया और ये प्लस जो है माइनस को ले लिया। तो इसका मतलब क्या, the reaction in which the ions in the reactants exchange to form a precipitate। अब exchange हो गया, उसका रिजल्ट क्या है, it is resulted into precipitate। Then such type of reaction is called as double displacement reaction। Then such type of reaction is called as double displacement reaction। आपको समझ में आया स्टूडेंट्स कि डेफिनेशन आपको लिखना है और इसके बारे में भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा लिखना है कि व्हेन पोटेशियम क्रोमेट इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ बैरियम सल्फेट। अभी बैरियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन है ना स्टूडेंट, इट इज़ मिल्की वाइट इन कलर, इट इज़ मिल्की वाइट इन कलर। और यह जो है ना, ये क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट जो है ना, ये येलो कलर का होता है। लेकिन जब इसका प्रेसिपिटेट बनेगा तो व्हाट इज़ द प्रेसिपिटेट, बैरियम क्रोमेट। बैरियम क्रोमेट जो है वो थोड़ा वाइटिश येलो रहेगा। कैसा रहेगा, वाइटिश येलो रहेगा और वो इनसॉल्युबल होगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज द प्रेसिपिटेट। ओके, सो नाउ तो इस तरह से चार जो मेन टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस थे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मैंने कवर कर लिए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। रिएक्शंस और प्रोसेस भी कह सकते हैं, रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मिक वर्ड जैसे आप सुनेंगे, थर्मिक या थर्मल या थर्मोडायनामिक्स, तो ऐसे जब आप वर्ड सुनते हैं ना, थर्मिक, थर्मल, इसका मतलब कि उससे हीट से रिलेटेड होते हैं। वो टॉपिक जो होते हैं किससे रिलेटेड होते हैं, हीट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर भी हम हीट से रिलेटेड टॉपिक देखेंगे कि वेदर इन अ रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब कि हीट इज गिवन आउट। तो अभी डेफिनेटली जब एक बात है स्टूडेंट्स की वेन एवर देर इज़ अ केमिकल रिएक्शन देर इज़ अ केमिकल चेंज, साथ ही साथ उसका फिजिकल चेंज भी होता है। लेकिन जब फिजिकल चेंज होता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसमें केमिकल चेंज हो। ओके, आपको समझ में आ रहा है? मैं वापस एक बार बताता हूँ, वेन एवर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस देर इज़ अ केमिकल चेंज। ओके, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो गया तो उसका फिजिकल भी चेंज हो सकता है, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड हो सकता है, लिक्विड का सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन वो केमिकली चेंज हो गया, इसलिए वी आर मोर पुटिंग फोकस्ड ऑन केमिकल चेंज। ओके, लेकिन जब फिजिकल चेंज होता है तो देयर इज नो केमिकल चेंज इन दैट, ओनली फिजिकल चेंज इज दैट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हीट इज आइदर एब्जॉर्ब, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो इन अ रिएक्शन हीट इज गिवन आउट, या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या तो हीट इज गिवन आउट। सो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस एंड द रिएक्शन, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ रहा है? या तो हीट एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द सराउंडिंग या तो हीट विल बी गिवन आउट फ्रॉम द रिएक्शन। तो दो ही टाइप के इसमें पॉसिबिलिटीज़ है। तो फर्स्ट हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो मैंने अभी कहा आपको कि हीट फ्रॉम आउटसाइड इज एब्जॉर्ब, तो अभी सराउंडिंग है, जैसे कि अभी ये आइस है, ये क्या है स्टूडेंट्स, आइस है। तो अभी मैं आइस रखा तो आइस पिघल रहा है धीरे धीरे, आफ्टर 2 मिनट्स, आफ्टर 5 मिनट्स वो आइस क्या हो रहा है, पिघल रहा है। अब आइस क्यों पिघल रहा है आपको पता है, क्योंकि हमने तो उसको हीट तो नहीं, आप तो डायरेक्टली उसको बहुत सारा आइस बर्तन में रख के उसको हीट कर सकते हैं, तभी भी आइस क्या हो जाता है, पूरा पिघल जाता है। पर मैंने सिर्फ एक आइस के टेबल पे रखा तो आफ्टर 2 मिनट्स 3 मिनट्स इट स्टार्ट्स मेल्टिंग,
तो क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, सराउंडिंग में से हीट ले रहा है। क्या ले रहा है? हीट कहाँ से ले रहा है? सराउंडिंग में से हीट ले रहा है। दैट मीन्स द आइस क्यूब टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, है कि नहीं? हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग ले रहे, मतलब क्या? हीट इज एब्जॉर्ब एंड आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, एंड आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। तो इस तरह से देख रहे हैं आप कि उसमें क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है कि आइस क्या हो गया, वाटर में कन्वर्ट हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल आप ले लेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। तो मतलब पानी में अगर आप पोटेशियम नाइट्रेट अब जब आप डालोगे और उसको आप शेक करोगे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। तो उसमें भी क्या हो रहा है कि हीट इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग एंड such type of reaction is in which heat is absorbed from the surrounding या heat is taken in that type of reaction is called as endothermic reaction. Okay, समझ में आया स्टूडेंट्स? The reaction in which heat is taken in अगर नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं heat is absorbed from the surrounding, मतलब बाहर से absorb करते हैं, तो then such type of reaction is called as endothermic reaction. Now if we talk about exothermic reaction, तो obviously उसका उल्टा होगा। exothermic reaction में क्या होगा, उसका उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन का उल्टा होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में अभी मैंने क्या कहा कि हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग। अब एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट इज गिवन इनटू द सराउंडिंग या हीट इज लिबरेटेड या हीट इज गिवन आउट। समझ में आया? तो उसका डेफिनेशन क्या होगा, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट, द रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट या फिर हीट इज लिबरेटेड, देन सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज exothermic reaction. Such type of chemical reaction is called as exothermic reactions. Okay, तो उसके अगर examples लेंगे तो formation of ice into water, formation of ice into water। देखो ice बन गया, किस कहाँ से बना, वाटर से। तो वाटर जो नॉर्मल जब आप पानी ग्लास में रखते हो वो बाहर के टेम्परेचर की वजह से हल्का गर्म होता है, हल्का 0 डिग्री सेल्सियस तो होता नहीं है ना। तो दैट वाटर जो कि उसका टेम्परेचर होगा सपोज 15-16 डिग्री, वह वाटर अगर हम फ्रिज में रखेंगे क्या हो जाएगा, फ्रिज में रखेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है 15-16 डिग्री वह क्या करेगा, लूज करेगा, मतलब वो हीट क्या करेगा, इट गिव्स आउट दैट हीट और वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या बनेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइस इन इट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन द हीट इज गिवन आउट फ्रॉम दैट वाटर जो नॉर्मल वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं उसका थोड़ा एक हल्का टेम्परेचर होता है, 0 तो होता नहीं ना, आप इतना तो मानते हो। तो जो भी टेम्परेचर होगा जब हम फ्रिज में रखेंगे वो टेम्परेचर धीरे धीरे उसका कम हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स आइस फ्रॉम द वाटर। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप पानी में मिक्स कर दोगे तो उसका भी डिज़ोल्व हो जाएगा और वह भी क्या करेगा कि हीट इज़ गिवन आउट, क्या करेगा, वो हीट दे देगा। और जिस किसी बर्तन में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड आप मिक्स किए होंगे पानी के अंदर, तो वह जो बर्तन जो हल्का सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हल्का सा गर्म हो जाएगा। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आया? ओके, सो नाउ हम देखेंगे वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव टॉपिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट इज़ वी कैनॉट ऐड वाटर टू द कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब अभी आप एक बीकर ले रहे हो, उसके अंदर आपने एक सल्फ्यूरिक एसिड ले, क्या है स्टूडेंट्स, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। तो इसके अंदर आपने अगर समझो सडनली आपने वाटर डाला तो व्हाट विल हैपन, दैट वाटर गेट्स इवापोरेटेड एट अ फास्टर रेट। जो पानी जो आप डालोगे ना, पानी जो आप ऐड करोगे ना इसके अंदर, तो वाटर वेपर बन के वो सडनली बाहर आने की कोशिश करेगा एंड इट विल लीड टू एन एक्सीडेंट। तो इसके उल्टा हम करेंगे कि आपको जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का, अभी ये हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम उसको डाइल्यूट करना चाहते थे, कॉन्सेंट्रेटेड। ये जो H2SO4 है कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड। CONC मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैंने अगर पानी सडनली मिक्स किया तो व्हाट विल हैपन, द वाटर विल सडनली कम आउट एंड इट विल गिव आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट। ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड विच मे लीड्स टू एन एक्सीडेंट। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और उसके अंदर पहले से ही हम पानी लेंगे, क्या लेंगे, वाटर लेंगे। पहले क्या कर रहे थे हम, H2SO4 में पानी मिक्स कर रहे थे,
अब पानी सर्टन अमाउंट ऑफ लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू पुट ड्रॉप बाय ड्रॉप, we are going to put drop by drop sulfuric acid, and meanwhile we are going to stir it, ओके। स्टर करेंगे, क्या करेंगे, स्टर करते रहेंगे, एक साइड में हम स्टर करते रहेंगे और ड्रॉप 2-3 ही ड्रॉप डालेंगे वो बीकर के अंदर। नाउ दिस ये कि मैंने क्या ऐड किया, दिस इज H2SO4, तो क्या हो जाएगा, अभी हमें डाइल्यूट H2SO4 मिलेगा। और इस केस में जो हीट जो लिबरेट होता है ना, दैट इज लेस अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, लेस अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड या गिवन आउट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो इन शॉर्ट अभी इसका थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता दूं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज एब्जॉर्ब, हीट इज टेकन इन, तो सच अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट इज गिवन आउट या हीट इज लिबरेटेड, देन सच अ टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एग्जांपल क्या दोगे कि आइस टर्न्स इनटू वाटर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन वाटर। और एक्सोथर्मिक में आप एग्जांपल क्या दोगे, फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर and second one is the dissolution of sodium hydroxide in water, okay। so now moving on to next, और यहाँ पर आपने देखा कि इसमें tremendous amount of heat इवॉल्व हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, लेस अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रहा है, ओके। तो ये सेफ मेथड है, ये वेरी डेंजरस मेथड है। सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हम लोग एक यहाँ पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टेक 2 प्लास्टिक बॉटल्स, 2 प्लास्टिक बॉटल लेंगे ऑफ सेम साइज, सपोज दिस इज अ प्लास्टिक बॉटल ऑफ सेम साइज, ओके। अभी प्लास्टिक बॉटल क्यों चूज किया हमने, ताकि हम लोग दोनों में 100 ml वाटर लेंगे, क्या लेंगे, 100 ml वाटर लेंगे ईच, 100 ml वाटर ईच, ओके, 100 ml वाटर। और एक में हम लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, और दूसरे में हम लेंगे NaOH। अभी प्लास्टिक बॉटल लेने का मतलब क्या है कि जैसे ही रिएक्शन हो जाएगा ना, तो प्लास्टिक डज नॉट गिव हीट, डज नॉट लूजेस हीट टू द सराउंडिंग, मतलब प्लास्टिक जो है जल्दी से हीट जो है ना वो सराउंडिंग में बाहर नहीं देगा, बिकॉज प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। तो अब हम देखेंगे 5 ग्राम ऑफ KNO3 मिक्स करेंगे और यहाँ पर भी 5 ग्राम ऑफ NaOH मिक्स करेंगे। तो आफ्टर जैसे ही उसको क्या करेंगे, वी शेक द बॉटल्स एंड हम चेक करेंगे अभी किसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे द फर्स्ट बॉटल इन विच वी हैव एडेड 5 ग्राम ऑफ KNO3 मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, उसका जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्मल होगा, हल्का लेस होगा देन द हीट फॉर्म्ड इन द सेकेंड बॉटल बाय मिक्सिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन द 100 ml वाटर। तो सेकंड वाले बॉटल में क्या होगा, हीट का जो प्रमाण है आपको पता चलेगा जैसे आप वाटर का टेम्परेचर चेक करोगे। क्या करोगे, वाटर का आपको टेम्परेचर चेक करना है, टेम्परेचर ऑफ मिक्स करने के बाद वाटर का टेम्परेचर चेक करना है। तो इस वाटर का जो टेम्परेचर है उसका क्या होगा, हीट कम होगा, इसका जो टेम्परेचर जो वाटर है बाय मिक्सिंग NaOH इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। तो टेक्स्ट बुक में वो दिखाया कि इन द फर्स्ट बॉटल द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टेक्स प्लेस एंड while in the second bottle dissolution of NaOH is taking place। और फिर बाद में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या था स्टूडेंट्स, कि हीट इन द फर्स्ट बॉटल इज लेस देन द हीट इन द सेकेंड बॉटल। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं आपको क्या कर रहा था कि द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द आउटसाइड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। और फिर व्हेन द सॉलिड NaOH, यहाँ पर मैंने सॉलिड NaOH लिया था, क्या लिया था, सॉलिड NaOH लिया था। तो सॉलिड NaOH डिजोल्व्स इन वाटर, इसमें क्या हो रहा है, हीट इज गिवन आउट, इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें हीट इज given out, okay। So then such type of reaction is called as exothermic reaction in which the heat is given out, okay। तो मैंने काफ़ी सारा आपको बताया है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कि कभी भी रिएक्शन होता है
तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट। आप देख रहे हैं कि एक बर्फ़ जब पिघल रहा है तो बाहर से टेम्परेचर जो सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो आइस ले रहा है, इसकी वजह से पिघल रहा है, और उसकी वजह से सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ जो है उसका थोड़ा सा कम हो रहा है। तो देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट, ओके, देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ हीट। और तो कुछ रिएक्शन जो होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन जो होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो अभी हम पता कैसे करेंगे कि कुछ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ रिएक्शन एंडोथर्मिक होते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले लेक्चर में हिंट दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने बताया था कि CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4 प्लस Cu प्लस हीट। तो मैंने यहाँ पर तो राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में अगर हीट आए इसका मतलब कि दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अंडरस्टूड, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया CaCO3, व्हेन इट इज हीटेड इट फॉर्म्स CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दैट केस हीट इज सप्लाइड। तो हमने हीट उसको सप्लाई किया या फिर हमने उसको बर्नर से इसको हीट किया, तो इन दैट केस वी कैन से दैट इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दो टाइप के रिएक्शंस हैं यहाँ पर, एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला फेमस एग्जांपल हमने केमिकल इक्वेशन में लिया था, आज भी मैंने डिस्कस किया, जिसमें हम लोग ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि इसमें प्लस माइनस है और इसमें प्लस है, एक ही प्लस है दूसरा माइनस नहीं है, तो इसका जगह ले लेगा। ये हाई रिएक्टिव मेटल है, ये लो रिएक्टिव मेटल है, तो यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, आपको मैंने बताया था। तो इसमें प्लस हीट भी प्रोडक्ट साइड में आ रहा है, मतलब कि उसका जो रिएक्शन है आप इसको टच करने पर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, थोड़ा सा लिटिल बिट हॉट, क्या हो जाएगा, लिटिल बिट हॉट। इससे आपको क्या पता चलेगा, हीट इज गिवन आउट, देन सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में इसको हमें गर्म करना पड़ रहा है, मतलब हीट इज सप्लाइड, तो उसका साइन मैंने बताया था डेल्टा। इन दैट केस व्हाट इज लिबरेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड, एंड व्हाट इज रिमेनिंग इज द कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स इतना आपको? तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। तो आई होप सो आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। थोड़ा सा हमने पहले लेक्चर का कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा लिया, लेकिन साथ ही साथ मैंने उसमें काफ़ी सारे नई चीज़ें भी बताई जो शायद छूट गया होगा। तो आज मैंने कवर किया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके डेफिनेशंस, उसके एग्जाम्पल्स। लेकिन एग्जाम्पल्स इक्वेशन लिखते समय उसको पहले डिस्क्राइब करो, ओके, डिस्क्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस केस में आपको लिखना है, रिएक्शन लिखने से पहले आपको क्या लिखना है, व्हेन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन या फिर व्हेन जिंक डस्ट इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वी गेट जिंक सल्फेट, कलरलेस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर, ऐसा आपको लिखना है। फिर आपको ये इक्वेशन लिखना है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर हमने देखा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन, है ना, तो टू रिएक्टेंट्स, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, तो वह होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमने देखा आज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, काफ़ी सारे रिएक्शंस हमने आज देखे। तो और भी दो टाइप के रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे आगे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और फिर बाद में हम अगले लेक्चर में देखेंगे द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो वह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो टिल देन दिस इज प्रकाश सर सेइंग यू गुड बाय, थैंक यू।